Good afternoon, friends. I, Dr. Imi Singla, Director Singla Medical Clinic, Director IV Test Tube Baby Center. Today I am live on a different topic, that is recurrent miscarriages. Basically, this is an initiative by Singla Medical Clinic to put across educational videos related to patient awareness. लाइक जो हम पेशेंट्स को काउंसल करते हैं इन आर रूटीन ओपीडी प्रैक्टिस, जो हम काउंसल करते हैं ऑन वेरियस फोन कॉल्स एंड ऑल दीज थिंग्स, एटलीस्ट आई कैन एजुकेट टू सम ऑफ ऑल माई पेशेंट्स, टू ऑल माई व्यूअर्स हु आर वॉचिंग मी लाइव ऑन फेसबुक. I just want to have some carry home messages, some tips regarding related to their recurrent miscarriages and how we can prevent recurrent miscarriages, and what is the treatment, and what is the protocol, and what are the various tests that what we are following at our clinic. As a recurrent miscarriage specialist, as an infertility specialist, as an IVF specialist, I just want to put some carry home messages. Hope you all like it. Now I am going to start. Whenever a patient comes to me in the OPD with a history of recurrent abortions, अब मेरे से पेशेंट पूछता है कि मैम व्हाट इज रिकरेंट अबॉर्शंस, व्हाट इट इज. Like in a female who is having a history of 2 or 3 abortions, basically 3 or more than 3 abortions, we call it as a recurrent miscarriage. We call it as a recurrent abortion. अब जब भी कोई फीमेल whenever she visit to me at my OPD, इफ़ शी इज़ अ केस ऑफ रिकरेंट मिसकैरेज, तो उसके एक माइंड में बहुत सारी लाइक शी इज़ इन डालिमा कि व्हाट माय डॉक्टर विल सजेस्ट मी कि वेदर कैन आई हैव अ नॉर्मल प्रेगनेंसी आफ्टर दैट और नॉट. बिकॉज उसके एक मन में बहुत ज़्यादा डर होता है, मैम मेरा अपना बच्चा होएगा, कैन आई गेट प्रेग्नेंट, और इफ़ आई गेट प्रेग्नेंट तो विल माई प्रेगनेंसी विल कंटिन्यू, लाइक माई प्रेगनेंसी आगे तक जाएगी कि नहीं जाएगी. तो देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट इज इन हर माइंड, जो उसके माइंड में चल रहे होते हैं, एंड शी वॉन्ट्स टू शेयर ऑल दीज क्वेश्चंस विद अस कि क्या हो सकता है. तो लाइक आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर कि पहले तो जो मैंने आपको बताया, इफ़ एनी फीमेल हु इज़ हैविंग अ हिस्ट्री ऑफ 3 or more than 3 abortions, we call it as recurrent miscarriages or recurrent abortions. तो इसमें क्या है, वी हैव टू टेक इन डिटेल हिस्ट्री ऑफ पेशेंट. इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द एज ऑफ द पेशेंट. लाइक इफ़ दे आर यंग कपल, इफ़ देयर इज़ मिडल एज कपल, इफ़ देयर इज़ अ ओल्ड कपल. Related to that, and second history we have to take in detail at what time she had her abortion. She had her abortion 1 to 1.5 months, 2 months, 2.5, 3.5, or in between 4 to 5 months. Like what is the history of abortion and what is the timing of her pregnancy at that time. These 2 points are very important. If someone is going to her gynecologist, they should also keep in her mind कि these 2 questions are very important. इसके अलावा लाइक देर आर लॉट ऑफ थिंग्स एंड लॉट ऑफ फैक्टर्स डिपेंड्स कि व्हेन शी गेट हर अबॉर्शन. इफ़ शी गेट्स हर अबॉर्शन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम बोलते हैं फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी. जो फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी है उसमें शी कैन हैव कि जा तो उसका जो बेबी है उसका धड़कन नहीं आई है, वी यूज टू कॉल इट एज कार्डिक एक्टिविटी along with gestational sac, along with fetal node plus cardiac activity plus early gestational sac, that should come around at 6 weeks of pregnancy. If she is not getting this cardiac activity at age of 6 to 7 weeks of pregnancy, then something is faulty there. If there is something faulty there, तो हमें उसमें थोड़ा सा एक आइडिया लेना होता है कि जो इसका कार्डिक एक्टिविटी है वो क्यों नहीं आया है. और प्रीवियस जो उसकी अबॉर्शंस की हिस्ट्री हुई है, तो प्रीवियस अबॉर्शंस में भी शी हैड दिस हिस्ट्री ओनली कि उसके जो बच्चे की धड़कन थी, जो कार्डिक एक्टिविटी थी, दैट डिडंट कम, कि वो नहीं आई है.
Secondly, if she's, I mean, her cardiac activity is normal, everything is normal, but still her after 2 weeks, around 8 to 9 weeks, उसका जो अबॉर्शन है वो हो जाता है. सडनली बच्चे की धड़कन जो है वो गायब हो जाती है. आई एम गेटिंग लॉट ऑफ पेशेंट्स रिगार्डिंग दिस ऑल्सो, जिसमें क्या होता है कि उनकी पहले एक बार धड़कन आ चुकी है, बेबी की कार्डिक एक्टिविटी हैज़ कम अराउंड 6 to 7 weeks, बट सडनली शी लॉस्ट हर कार्डिक एक्टिविटी अराउंड 8 to 9 weeks. इसके अलावा होता है अराउंड 11 to 12 weeks, समथिंग देयर कुड बी सम ब्लीडिंग, आई मीन पेशेंट्स आर गेटिंग ब्लीडिंग, तो दैट कुड बी अ साइन फॉर अर्ली थ्रेटन्ड मिसकैरेजेस ऑल्सो. दैट अगेन वी हैव टू टेक हिस्ट्री इन डिटेल कि व्हेन शी हैड हर अबॉर्शंस. तो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस दैट वी हैव टू कीप इट इन माइंड व्हेन वी आर टेकिंग दिस टाइप ऑफ हिस्ट्रीज. नाउ आई विल टेल यू डिटेल वन बाय वन. लाइक इफ शी इज हैविंग एन हिस्ट्री ऑफ अर्ली अबॉर्शंस, लाइक उसका जो फर्स्ट 3 months में उसकी अबॉर्शन हुई है, तो जो फर्स्ट 3 months में उसका जो अबॉर्शन हुआ है उसके देयर कुड बी लॉट ऑफ रीजंस. तो जब पेशेंट हमारे पास फर्स्ट टाइम विजिट करता है, इफ आई एम राइटिंग अ लॉट ऑफ लिस्ट, मैं उसकी एक लंबी सी लिस्ट लेके दे देती हूँ कि ये टेस्ट कराने जरूरी है. तो समटाइम्स देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो पेशेंट के माइंड में चल रहे होते हैं कि ये मैम ने ये डॉक्टर तो मनी माइंडेड है, ये डॉक्टर तो ये है, इन्होंने हमारे इतने सारे टेस्ट लिख दिए हैं. बट आई थिंक इन टूडेज सिनेरियो एज एन एजुकेटेड कपल यू शुड आस्क योर डॉक्टर कि व्हाई आई एम राइटिंग ऑल दिस टेस्ट एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस इन दीज ऑल दिस टेस्ट, व्हाई आई एम गेटिंग ऑल दिस टेस्ट. तो इसमें जैसे हम रूटीन में कराते हैं, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी टाइटर आते हैं हमारे पास, एलए कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज आती हैं. इसके अलावा हम कई पेशेंट्स से हम टॉर्च भी कराते हैं. टॉर्च इन नाउ डेज इट इज ऑब्सोलीट, बट कई पेशेंट्स में हमें कराना पड़ता है. कई पेशेंट्स में हम लोग प्रोटीन सी डेफिशिएंसी, प्रोटीन एस डेफिशिएंसी, एंटीथ्रोम्बिन 3 फैक्टर, देयर आर लॉट ऑफ टेस्ट दैट वी आर गेटिंग फॉर सम ऑफ द पेशेंट्स. आई कैन कंसिडर कि दीज ऑल टेस्ट आर लिटिल बिट कॉस्टली टेस्ट ऑल्सो, बट लेकिन अगर आप प्राइवेट में जा रहे हैं, इफ़ यू कैन अफोर्ड, तो आपको ये टेस्ट कराने पड़ेंगे. बट लेकिन अगर आप अफोर्डिंग इतना नहीं हो कि यू कैन नॉट गो टू अ प्राइवेट क्लिनिक, देन यू कैन गो टू गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो. इन गवर्नमेंट सेक्टर आई थिंक देर आर, आई मीन दे आर एबल टू गेट ऑल दिस ब्लड टेस्ट. वाई शी इज गेटिंग ऑल दिस अबॉर्शंस. But I suggest and I strongly recommend, if you are having history of 3 or more abortions, प्लीज़ उसके बाद जो आपने प्रेगनेंसी प्लान करनी है, प्लीज़ डोंट प्लान योर प्रेगनेंसी ब्लाइंडली. एटलीस्ट यू शुड हैव सम कंसल्टेशन फ्रॉम योर गायनेकोलॉजिस्ट कि व्हाई आई एम गेटिंग ऑल दिस टाइप ऑफ अबॉर्शंस. इसके अलावा उसका फिर हम एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं. अल्ट्रासाउंड यूजुअली व्हाट आई गेट के टू सी द यूट्राइन अनॉमली. कई बार क्या होता है कि यूट्रस के अंदर छोटा सा सेप्टम होता है ऊपर, जिसको हम बोलते हैं यूट्राइन सेप्टम. कई बार क्या होता है कि यूट्रस की जो शेप है कई बार वो एबनॉर्मल होती है. इन सम पेशेंट्स दे केम विद अ बाइकॉर्नेट यूट्रस. बाइकॉर्नेट यूट्रस होता है जिसमें 2 यूट्रस होते हैं, कैविटीज 2 होती हैं उसमें, और कईयों में होता है सेप्टम. इफ यू हैड दिस बाइकॉर्नेट यूट्रस, इफ यू हैड दिस सेप्टेड यूट्रस, देन वी कैन प्लान देयर hysteroscopy also, along with in some cases for diagnostic laparoscopy also. But hysteroscopy is much better choice than the hysterolapro combination. इसके अलावा अगर सपोजिंग आपको इन दोनों चीज़ों का क्लियर हो जाता है, देन कई बार क्या होता है कि कुछ भी नहीं वर्कआउट होता. शी इज़ हैविंग ऑल द टेस्ट नॉर्मल, शी इज़ हैविंग द नॉर्मल अल्ट्रासाउंड, शी इज़ हैविंग द नॉर्मल हिस्टेरोस्कोपी, बट नथिंग इज वर्किंग आउट, बट स्टिल शी इज़ गेटिंग लॉट ऑफ अबॉर्शंस. then the question comes in our mind, can then where could be some problem. Then in detail about their parents history, कि whether they are diabetic or not. अगर वो डायबिटिक हैं दोनों, तो देयर कुड बी सम फोकस कि वी हैव टू इवेल्युएट both partners related to their diabetic potential also. So diabetes history is very must and it is very important, because diabetes, it could be one of the reasons for the recurrent abortions. It could be the reason for bad obstetrical history also. Thyroid history is very very important. इसके अलावा VDRL जो हम कराते हैं, दैट इज टू रूल आउट सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस. दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट दैट वी शुड गेट इट फॉर बोथ द पार्टनर्स. इवन वी आर गेटिंग दिस टेस्ट इन दी व्हेन शी बिकम्स प्रेग्नेंट इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, वी यूज टू गेट दिस टाइप ऑफ टेस्ट. बट कई बार क्या होता है कि व्हेन शी हैड अ हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन एट 6 weeks, तो वी वर नॉट एबल टू गेट ऑल दिस ब्लड टेस्ट. बट इफ शी इज हैविंग अ हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट अबॉर्शन 6-7 weeks, 8 weeks, 9 weeks, तो जो ये मैंने आपको टेस्ट की लिस्ट बताई है, these are very important tests and they should get all this blood test.
इसके अलावा सपोजिटली आपकी जो अबॉर्शन है आपका 8 to 9 वीक्स पे हुआ है, अगर आपका अबॉर्शन 8 to 9 वीक्स पे हुआ है एंड यू हैड अंडरगॉन अ DNC, जिसको हम बोलते हैं आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स डाल के वो क्लीन किया जाता है, तो जब वो क्लीन करते हैं तो दे विल गेट दिस प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, and that products of conception we are going to send it for the histopathology and we are going to send it for the to the karyotypic analysis के उसमें क्या हो सकता है. In today's scenario we are getting the NGS, that is the non-disjunction analysis, that like karyotyping analysis and genetic analysis is very very important in products of conception. इसके अलावा अब आता है हमारे पास सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन. इफ शी इज हैविंग अ हिस्ट्री ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस कि इसके 3 months 4 months या 3 months क्रॉस करने के बाद इन बिटवीन 4 to 5 months शी इज गेटिंग रिकरेंट अबॉर्शंस, अगर उसको रिकरेंट अबॉर्शंस इन बिटवीन 4 to 5 months पे हो रहे हैं तो हमारा जो डायग्नोसिस है फर्स्ट जो जाता है दैट कुड बी अ सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस. सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस क्या होता है कि जो उसका बच्चेदानी, उसका यूट्रस का जो मुंह है दैट इज सर्विक्स, वो कई बार खुल जाता है. जब वो कई बार खुल जाता है तो उसमें से अपने आप जो पानी है बेबी के आसपास, जो एमनियोटिक फ्लूइड हम जिसको बोलते हैं, दैट इज कमिंग थ्रू दैट. और कई बार उसके साथ बहुत गंदा थिक डिस्चार्ज भी आता है. जब वो थिक डिस्चार्ज आता है, जो फ्लूइड है वो उसके आसपास बाहर नीचे की आनी शुरू हो जाता है, तो उसका जो नीचे का बच्चेदानी का मुंह है वो खुलना शुरू हो जाता है. और जब वो खुलना शुरू हो जाता है तो ऑटोमेटिकली द पेशेंट विल टर्न अप इनटू इनएविटेबल अबॉर्शन. इसमें कई बार हम लोग बेबी को सेव नहीं कर पाते हैं. तो मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव द मैसेज कि जो अबॉर्शंस होते हैं देयर कुड बी अ मेनी रीजंस एंड डिपेंड्स अपॉन द टाइम एंड डिपेंड्स अपॉन द ट्राइमेस्टर कि किस टाइम पे आपका जो अबॉर्शन है वो हुआ है. अब इसके अलावा रहता है जो हमारा मेन मैनेजमेंट, लाइक व्हाट वी ट्राइंग टू गिव एज एन इनफर्टिलिटी एंड IVF स्पेशलिस्ट. In today's scenario, we have lot of treatment available in relation to these recurrent miscarriages, जिसमें हम लोग पेशेंट को कुछ मेडिसिन पे डालते हैं when she had her last abortion. जो मेरा प्रोटोकॉल रहता है 3 months के लिए I used to put her on the Cosprin plus folic acid. उसके बाद when she conceives, as soon as she conceives, तो हम उसका उस दिन बीटा ECG कराते हैं. If she comes out to be positive, then we used to give her some injections. जो उसके इंजेक्शंस हैं, कई इंजेक्शंस उसके 3 months तक चलते हैं, कई इंजेक्शंस हैं जो उसको कैरी करने पड़ते हैं टिल 8 to 9 months. तो उसमें 2 फैक्टर्स आते हैं. अब उसमें एक क्वेश्चन आता है कि इफ शी इज अ कैंडिडेट ऑफ एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, अगर उसका एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी मैंने पहले कराया हुआ है एंड शी कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, देन द इंजेक्शंस आर हाईली रिकमेंडेड टू गेट इट टिल 8 to 9 months. बट अगर सपोजिंग उसके जो एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी टाइटर है या रिलेटेड टू अदर एंटीबॉडीज टेस्ट एंड दैट ऑल कम्स आउट टू बी नॉर्मल, वो नॉर्मल टेस्ट है, नथिंग इज रिलेटेड टू दैट. बट समटाइम्स एम्पेरिकली वी हैव टू पुट ऑल दिस इंजेक्शंस अलॉन्ग विद सम मेडिसिन्स टिल हर 8 to 9 months ऑफ प्रेगनेंसी. रिसेंटली मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, आई हैड वन ऑफ माई पेशेंट, शी हैड अ हिस्ट्री ऑफ 6 recurrent abortions, 6 times she had an abortion. तो एट द टाइम ऑफ 7th pregnancy when they want to plan, the couple came to me. उसके पहले मैंने आपको अभी बताया, आई हैव टेकन ऑल द ब्लड टेस्ट, और उसके बाद विद इन 2 to 3 months दे कंसीव ऑल्सो. कंसीव होने के बाद उनकी जो हिस्ट्री थी, शी हैड एन हिस्ट्री ऑफ 3 abortions एट द एज ऑफ अराउंड 2 to 3 months, और उसके बाद जो 3 abortions की हिस्ट्री थी उसकी इन बिटवीन 5 to 6 months. तो आई हैव पुट हर ऑन इंजेक्शंस एंड आई हैव पुट अ सर्वाइकल स्टिच ऑल्सो in between 12 to 13 weeks of pregnancy. like जो हमारा प्रोटोकॉल रहता है around 12 to 14 weeks of pregnancy we have to put a cervical stitch along the cervix, that we have given to that lady. उसके बाद जाकर के till 36-37 weeks तक she carried the pregnancy, और उस टाइम पे जाकर के we have removed the stitch and she had a delivery and she got her baby. तो she had given a very good feedback to us also. तो I just want to convey this message कि if any patient who is having the history of recurrent miscarriages, तो उससे आपको मायूस नहीं होना है. आई मीन यू शुडंट लूज योर होप, ऑलवेज बी पॉजिटिव. जो मैं हर अपनी जितनी भी मेरी लाइव वीडियोस आती हैं उन लाइव वीडियोस में आई ऑलवेज want to give this message to all my viewers, to all my patients, to all our viewers of our Singla Medical Clinic, कि आपको don't lose your hope. There is always a hope. There was always a hope and you have to try for that. If any patient who is having a history of recurrent miscarriages,
they can come to us and have detailed discussion related to their like planning for a pregnancy. And I welcome all the queries and all the answers. You can WhatsApp me, you can put your queries in the chat box, and you can put your queries on the WhatsApp number 98155004448 and 98155079744. These two are my numbers through which you can put your queries and you can get all the answers. If you want to visit our clinic, you can come to our clinic. Our clinic is at Mohali, and my IVF lab is at IVF Hospital Mohali. You can come to us and you can consult us. Thank you very much.